नमस्ते बच्चों, आई एम भगत सिंह यादव, टीजीटी इंग्लिश, जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर. I hope that you all are watching my videos which I have sent to you, or I have posted it on the YouTube channel. Now, we have already learned or discussed the tense, and that the present tense. Present tense we have already discussed. Today in this lesson, in this video, we are going to take our new tense, that is the past tense. So, I would like to tell you what is past tense. Actually, past tense is the tense which show the past time. Means some actions, some work which had been completed in the past, something that completed in the past. Those actions and those work, they are shown or they are explained or expressed through the past tense. So today we will discuss or we will read the past tense, and very first, past tense also has four parts, that the past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. In the same way as we have discussed the present, all the four parts, past tense is also having the same type of four parts. So today we will discuss the two parts of the past tense, that is the past simple tense and past continuous tense. In this video we will learn today these two type of tenses. So first we are coming to the past simple tense. As you know that past tense always show the past time, and particularly this past simple tense, it expresses the action that has completed in the past time. Mostly the past simple tense, it shows that some action completed in the past time. Sometimes it also shows that some habitual actions in the past, and it also shows the existence or position in the past. And also past tense express that when two actions simultaneously take place in the past, they are also expressed by this past tense. तो हमने चर्चा की कि पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है और पास्ट टेंस के यूज क्या है. पास्ट टेंस कोई भी काम जो पास्ट समय में हुआ है उसको बताने के लिए किया जाता है. कोई भी हमारी जो पास्ट की आदतें, हैबिट्स हैं, उनको शो करने के लिए भी पास्ट टेंस यूज किया जाता है. और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग जो है पास्ट टेंस की, हम जब बात करते हैं टेंस को समझाने की, तो हम थोड़ा इसको हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाइलैंग्वेज थोड़ा ठीक रहता है टेंस को समझना. तो पास्ट टेंस ऐसे जो हमारे हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जिनके अंत में था है, थी है, इस तरह के था शब्द जो आते हैं, वो अक्सर पास्ट टेंस कहलाते हैं. जैसे मैं कहता हूं कि मैं खाना खाता हूं, मैंने खाना खाया था. खाता हूं वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है. मैंने खाना खाया था, मैं कल घर गया था, या मैं एक बहुत बढ़िया मैंने कोई काम कल अपने घर पर किया था. ये सब इस तरह के जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस को शो करते हैं. अब पास्ट सिंपल टेंस हमें पता चल गया कि हिंदी में जिनके अंत में था है, थी आता है. और अब इसका जो मेन जो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है कि हम उस पास्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, और पास्ट टेंस की जो टेंस में एक्चुअली जो हमने पहले बात की थी, आज चर्चा की थी, वो थी वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. एक्चुअली टेंस जो है ये सारा बेस होता है, और जो टाइम इन टेंस के द्वारा शो करते हैं, वो उसमें जो वर्ब की फॉर्म्स है, वर्ब प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेंस. सो इन दिस past simple tense also there is the important role of verb, and in this past simple tense we use the second form of the verb. Now you see here the structure of the past simple tense. We will discuss the structure of past simple tense. Very first we will discuss
structure of the past simple tense. We can say it also the positive sentence of past simple tense. Now what is the structure? See here, very simple. Subject, very first there is the subject, then there is the second form of the verb. This is the important factor of the past simple tense. Keep this thing in mind, student. बच्चों ये ध्यान में रखना है कि past simple tense verb second form. When we put somewhere the second form of the verb, it means we are using past tense. Or in some sentence we see that there is the second form of the verb, it means it is the past simple tense. The second form of the verb, then as usual there is the object. Now, this second form of the verb, for example, you can see that the second form of some verbs like eat, second form ate, go, second form went, play, second form played, cut, second form cut. So we will discuss this topic also in our some other videos, the verb and the forms of the verb. But you have to learn these forms. You have to learn the forms because forms are very important in tense. तो हमने यहाँ देखा कि हमारा जो affirmative sentence का जो structure है वो है subject, verb second form, then object. Now according to this structure we are going to frame some sentences here. He played cricket yesterday. These are the time adverbs: yesterday, before, ago, last week, last night. ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो अक्सर पास्ट टेंस में यूज होते हैं. तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया. प्लेस की फर्स्ट फॉर्म है और प्लेड सेकंड, तो प्लेड. क्रिकेट ऑब्जेक्ट. दूसरा सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट दे sang, second form of the verb. The first form is sing. We have put here the second form sang. They sang a song. So in this way we can frame the affirmative sentence of past simple tense according to the structure of the past simple tense. Now, as we have done already in our previous lessons about the present tense, the affirmative is one type of sentence, then we can make the negative sentences also. Now you can see here what is the structure of the negative sentence. Here the structure is defined like this. First there is the subject, then there is the helping verb. This is the helping verb, did, and we put not with this helping verb. Now you should learn here, in present you have learned that there was the helping verb do and does. Now the helping verb of past tense is did. Helping verb, ये जो past tense की जो helping verb है वो होती है did. ये helping verb हम यूज करते हैं नेगेटिव बनाने में भी इसका यूज होता है. इस नोट लगाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा डिड नॉट. और अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस का तो वहां भी ये हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है. जैसा कि ये जो एक वर्ब है डू, उसकी जो सेकंड फॉर्म है डिड, तो ये सेकंड फॉर्म हमारे इस पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है. वी यूज डिड एज द हेल्पिंग वर्ब इन द पास्ट सिंपल टेंस. सो हियर वी आर पुटिंग आल्सो नोट विद दिस हेल्पिंग वर्ब. नाउ यू सी हियर, while we have put this did helping verb, then the second form of verb we will not apply here. This will be the first form of the verb and then object. This is the very important fact of this past simple tense of negative sentences. While putting the helping verb did, we have to change the verb second form into the base form, that is the first form of the verb. Keep this thing in mind. It is very important while changing the simple sentences of past simple tense into the negative sentence. Now you see here, just we can convert the first sentence into negative. He played cricket yesterday. Now just he. After that the structure say did not. Did not. Now see here, this played second form, but we have to put here the first form. He did not play cricket yesterday. So this is the negative
sentence of the past simple tense according to the structure. Now you are very familiar with this did, how we apply did here, then not, and then the first form of the verb. Now you can convert this one also. They did not. Now we have to put not sang. It is the second form. We have to put here the first form. They did not sing a song. तो ये इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए. अब हम एक हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं इसमें. ये जो हमारी जो वर्ब है डिड, जैसा हमने पहले भी हम बता चुके हैं आपको, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट सिंपल टेंस में हम इसका यूज करते हैं. और जब ये डिड हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ये सब के साथ एक रहती है. प्रेजेंट टेंस में जैसे हम डू और डज दो थी तो उसमें हमने डिफरेंस किया था, अलग अलग वर्ब हेल्पिंग वर्ब अलग के साथ आती थी. बट हियर इज ओनली द वन हेल्पिंग वर्ब, सो वी विल पुट डिड विद ऑल द type of pronouns and singular and plurals. So in this way we have convert the sentences into negative. We have framed the negative sentences. Now see here the interrogative sentence and the structure of interrogative sentence of past simple tense. Very first we are taking here the helping verb did. ये सबसे पहले आ जाएगी helping verb did. उसके बाद आपका subject हम लगा देंगे यहाँ पे. सब्जेक्ट लगाने के बाद जैसे हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में, तो पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ले आते हैं. तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स फ्रेम द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नाउ सी हियर ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. नाउ वी हैव टू चेंज दिस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो ये जो सेंटेंस है इसको हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, देन द सब्जेक्ट, सी द सब्जेक्ट देयर, इट इज ही, डिड ही. नाउ द वर्ब, व्हिच वर्ब वी विल पुट हियर, फर्स्ट वर्ब, डिड ही प्ले, देन द ऑब्जेक्ट, डिड ही प्ले क्रिकेट yesterday and question mark. Okay, now come to the second one. They sang a song. Again interrogative, we have to put the helping verb did, subject, did they, sang second form because helping verb is used, तो first form आएगी यहाँ पे, did they sing a song and the question mark. So this is the way we can frame the interrogative sentence by keeping in mind the structure of this interrogative sentence. That is did, the helping verb in the beginning, then subject, verb, first form. This is important, and then object. So this way we have framed all the three types of sentences of past simple tense, that is affirmative, negative, and interrogative. And you are well aware that we use past simple tense when we want to show that some action completed in the past. Now let's see the second part of the past tense, that is past continuous tense. Past continuous tense. This is also like the present continuous. We have already discussed the present continuous tense. Now here in this past continuous tense, it shows that some action that was taking place in the past. Some action that was taking place in the past. कोई ऐसा काम जो पास्ट टाइम में कंटिन्यू था, इट वॉज गोइंग ऑन, मतलब पास्ट में जो हो रहा था. फिर वही शब्द आते हैं हिंदी में. हम जैसे मैं कर रहा था, गा रहा था, खेल रहा था, चल रहा था, रही थी, रहे थे. इस तरह के शब्द हिंदी में जिन वाक्यों में आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. नाउ व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? Was and were.
ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, was and were. After that, fourth form of the verb होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing फॉर्म जो होती है, ing वर्ब जो होती है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर है हमारा, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज का, सिंपल सेंटेंसेज का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वो वाज और वर होती है, प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, हमने सेंटेंस यहाँ कुछ दो सेंटेंस लिखे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन होता है, इसके साथ हमने वर्ब जो लगाई है वो वाज लगाई है। क्यों? क्योंकि आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, हम जब पास्ट टेंस के जो वाज और वर है उसमें से हम इसके साथ वाज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो लगाते हैं। आई वाज डूइंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ चुकी है, आई वाज डूइंग माई होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। और अब ये जो डूइंग जो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में वो आपको पता ही है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है डूइंग, और दोनों हेल्पिंग वर्ब में से वाज और वर लगी है। अब वाज और वर में से हमने वाज लगाया क्योंकि आई के साथ हम पास्ट सिंपल टेंस में वाज लगाते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, इसमें हमने यू के साथ हमने देखना है, तो यू के साथ हम यहाँ वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी दूसरी जो है वर्ब, उसको हमने लगाया है यू वर ड्राइविंग ए कार। दिस इज द another sentence of past continuous tense in affirmative. You were driving a car. यहाँ you के साथ हमने जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब लगाई है। एक एक्सेप्शन है ये कि आप पूछेंगे, आप कहेंगे कि सर प्रेजेंट टेंस में तो आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में तो एम आता था, लेकिन यहाँ हम आई जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है उनके साथ हम वर्ब लगाए, ऐसा आपके ख्याल आता होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमेशा हमें आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज लगानी चाहिए। तो ये हमने जो अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाए। अब हम देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज द वाज और वर्ब, और नेगेटिव जो हम बनाते हैं एज यूजुअल आपको पता है उसके साथ नोट लगता है, तो वाज नोट, वर नोट, वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ जस्ट सी हियर, आई वाज डूइंग माय होमवर्क, आई वाज डूइंग माय होमवर्क, आई सब्जेक्ट, वाज नॉट बिकॉज नेगेटिव बना रहे हम, तो वाज नॉट, आई वाज नॉट द सेम थिंग डूइंग माय होमवर्क। तो ये इस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, आई वाज नॉट डूइंग माय होमवर्क। अब हम देखते हैं सेकंड, सिंपल है, सेम यू वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, यू वर नॉट ड्राइविंग ए कार। ये भी आपका जो है नेगेटिव का एक सेंटेंस बन गया है। तो वाज नॉट, वर नॉट, पास्ट टेंस के जब नेगेटिव बनाते हैं तो वाज नॉट, वर नॉट। और अब हम आगे चलते हैं, अगले जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिया है पास्ट सिंपल टेंस का। उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, वाज और वर्ब हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ सी हियर, यहां हम इसको बनाएंगे तो वाज आई, वाज पहले आ गया है, सब्जेक्ट उसके बाद चला गया, वाज आई डूइंग माय होमवर्क, और ये क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से आप नेगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से आप इंटरोगेटिव बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, तो शुरू में वाज रख के वाज आई डूइंग माय होमवर्क। इसी प्रकार से दूसरे का देख लीजिए, वर यू, वर यू पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर यू ड्राइविंग ए कार।
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। अब आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सिंपल आपके सामने है। किस तरह से हमने अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर देखे, फिर नेगेटिव के देखे, फिर इंट्रोगेटिव के देखे और उनके सेंटेंस बनाए। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता है, ये कोई चीज पास्ट में जब कोई एक्शन जो हो रहा है उसको वो दिखाने के लिए हो रहा था, कर रहा था, जो भी काम हम पास्ट में कंटिन्यू था उसको शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो आज के अब इस वीडियो में हमने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस क्या था, उसके स्ट्रक्चर क्या थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या था, उसके स्ट्रक्चर क्या थे, ये सब सीखा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अब मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टिल देन गुड बाय, टाटा।